ये उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम लोगों की तरफ से है, जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा। क्या बात है। ये पीछे 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 मैम सर 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 ओ भाई साहब कौन है भाई पीछे भाई क्या कर रहा है सर आइए एक फोटो करते हैं सब साथ में आइए सब फोटो करते हैं हाँ सब फोटो तो पहले एक बार हाँ उम्र तो कैसे हो भाई अलग ही है लगता है भी अपने को देगा काम भाई सब क्रिकेटर देखो उधर क्रिकेटर बड़ी सीट होती बड़ी ना भाई पीछे 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 भाई भाई माझ्या पार्टी में जितू भाई भाई नाही भेटत तो नहीं आया फ्रेम में क्या करना भाई झूम कर भैया सब आ गए गुरु सर आप फोटो पर मार अजीत भाई सामने सर गो बैक सब पीछे थोड़ा पीछे आ जाओ प्रॉपर मिलेगा कुछ कर कैमरा थोड़ा नीचे बस पीछे देख देख बस ये ऑल ऑफ सेंटर चल लोग यार आ जाओ सर आस्ते आस्ते पीछे देखो भाई भाई उस तरफ पवन ये नीचे लेंगे इसके पीछे लेंगे एक मिनट सर शुक्ला जी ऊपर मत ले बस एक सेकंड रुक जा नहीं नंबर एक फ्रेम में पवन मोबाइल नीचे पवन मोबाइल थोड़ा नीचे ले क्या बात है थैंक यू खेलते तो बहुत लोग हैं, आप सब यहाँ बैठे हो, बहुत लोग जाते होंगे अभ्यास करने, पर मौका सही वक्त पे मिल जाए तो वो जीवन बदल देता है। वो मेरे साथ घटा है इस टूर्नामेंट की बात करूँ तो। तालियां बस्ती रहनी चाहिए प्लीज। उसके बाद टीम के कैप्टन रितेंद्र सिंह सोनी के लिए जोरदार तालियां। वाइस कैप्टन मोहम्मद कैफ, उसके बाद प्रदीप चावला, ईशान हमें के लिए जोरदार ताली लीजिए ईशान भाई के लिए। जबरदस्त प्लेयर, जबरदस्त इंसान ईशान के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और वो छक्का तो सारी दुनिया को याद है।
अब तो किसी को बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उसके बाद रोहनीत सिंह, विवेक महाजन, अगम पंडित, राकेश रमन शाह, राजीव अरोरा, भुवन चंद्र हरबोला, एंड सबसे लास्ट में उनका नाम ले रहा हूं जिन्होंने इस पूरी टीम को सेलेक्ट किया, सेलेक्टर, असिस्टेंट मैनेजर, पीआरओ, जूनियर वर्ल्ड कप 1996 के दीपक पंडित। 16 ताली होनी चाहिए। Winning a World Cup without social media is what we are seeing, is what is here. So I'm not going to take much of time. We are here to celebrate this youngsters. I even call them today youngsters because they are even today 14 and 15 at heart. And age is just a number. And from this podium, on behalf of all of them, I wish my dear Prime Minister, who's one of my favorite, even Atal Bihari is my favorite, one of my favorite, Mr. Narendra Modi ji, a very happy birthday. He should live 100 years. We need him for this country. And I congratulate from Mumbai Cricket Association all these 1996 boys on winning a World Cup, that too against Pakistan. Thank you very much. We'll be presenting a check to the team. ये उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम लोगों की तरफ से है, जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा। क्या बात है। Thank you all of you to come here. और मैं तहे दिल से आप लोग का शुक्रिया मनाता हूँ। ये जो टीम हम लोग जब गए थे 96 में, it was underdog. Nobody knew that we'll win the trophy, like Kapil Dev team. And Sarkar ji, who was the off spinner for Haryana, he did an excellent job with the boys for months together, and he trained them hard and very hard and brought them to this level. As far as this event is concerned, because these boys, when they won the World Cup that time, that social media and all this thing, it was not there, and they didn't got that much money also, to be frank. That time the Prime Minister, he called for the breakfast, that's all. They were not given anything. So I thought, after 30 years,
to bring them in the front of the world so that इनके जो बच्चे हैं जो अभी बड़े हुए हैं वो देखेंगे कि मेरे फादर ने क्या किया एंड व्हाट ही brought that glory to this country. Their parents, they will also now देखेंगे कि वो जो 30 साल पहले हुआ था. So for them it will be a new life for the kids when they will go to the places and all this thing. Yeah, they are their son, daughter, they are their parents. So I wanted them to bring in front of the world what they had done 30 years back. So that was my idea. As far as this event is concerned, we have Eknath Shinde ji as our chief guest, Ashish Shelar ji and other MPs. They are coming and they will be felicitated by them. Then there is a Kashmiri Pandit Association Maharashtra. They come here. They will be also felicitating the team and Eknath Shinde ji and Ashish Shelar ji. And then Sri Satya Sai Organization Maharashtra. They are doing excellent job for the humanity, free hospital, free education, free water. So they are also a part of this team and they will be also felicitating Eknath Shinde ji, because what Eknath Shinde ji is doing excellent work in Kashmir after that Pahalgam attack. He is visited tremendous so many times. Now he is taking 1,000 wrestlers to them for the blood donation camp from Maharashtra. So and I am a fan of him. What he has done as a CM when he was CM for the Maharashtra, and now as Deputy CM he is working for the state. So I wanted him and come bless all of us. That's all. Sarkar ji, please, आप कुछ दो बात बोलो. सबको नमस्कार. सबसे पहले तो मैं दीपक जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये ऐसा मौका हमें दिया कि हम आपके सामने जो अंडर 15, वैसे तो अंडर 16 टीम थी जो वर्ल्ड कप 96 में जीती, जिसके कप्तान रतिंदर सिंह सोढी और वाइस कैप्टन मोहम्मद कैफ. और जो आपको मालूम होगा कि बाद में जाके इन दोनों ने इंडिया को रिप्रेजेंट करा और जो एक भारत की मान और जो उनका सम्मान था देश का, उसको उन्होंने जो लॉर्ड्स के अंदर फाइनल के अंदर जो इस यंग टीम ने, जैसे कि दीपक ने बोला कि वी वर अंडरडॉग, ऑफ कोर्स वी वर अंडरडॉग. नोबडी इज रेटिंग अस कि भाई इंडिया इज गोइंग टू विन दिस वर्ल्ड कप, बट वी डिड इट with the performance of it was a combined team, combined performance, and they all worked very hard for the goal and at last they climbed the Everest and जो टॉप के ऊपर जाके उन्होंने जो भारत का झंडा को लहराया. तो आज उसकी जो यादें 30 साल, ये 15 साल के थे, ये सारे 45 साल के हो गए. मैं उस टाइम 45 साल का था, मैं अब 70+ का हो गया. तो ये जो यादें हैं, जो आप देश के लिए आप जो भी अचीव करते हो, वो उसका तो कोई शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल होता है. उस जो फीलिंग्स है उसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हो. यू कैन फील इट, व्हेन यू फील इट देन यू क्राई, फिर आप रोते हो देश के लिए. तो ऐसा मकाम इन सारी टीम में 14 खिलाड़ी थे हम, और दीपक भी हमारे साथ था. तो वो 25 हज़ार क्राउड लॉर्ड्स के अंदर फाइनल मैच, ईस्ट एंड पे सारे पाकिस्तान के सपोर्टर और वेस्ट एंड पे सारे इंडिया के सपोर्टर. तो एंड ऑफ द डे वी वर सेलिब्रेटिंग द बिग दिवाली जो नो. और इट वाज सरकार जी, एक मेरे को याद आया पाकिस्तान पे, जैसे हमको कुछ 15-20 रन चाहिए थे जीतने को, 11-12 रन चाहिए थे जीतने को. पाकिस्तानी क्राउड घुस गया और उन लोगों ने पिच खोदने की कोशिश की. नहीं विकेट उठा के तो देर इन डेंजर, बट देन कॉप्स केम एंड ऑल दिस थिंग्स, देन मैच रुका एंड देन उनको हटाया और हमने फिर मैच शुरू किया एंड अल्टीमेटली वी वन द वर्ल्ड कप. सो उनकी आदत पुरानी है, वो पहले से ऐसे हैं, तो कोई नई बात नहीं है. पर उसमें आप देखो, किसी ने सोचा था कि वो अंडर 15 टीम में से ये आने वाले फ्यूचर के ये खिलाड़ी, यहाँ पे देखो कैफ है ऑलमोस्ट प्लेयर 100+ वनडे मैचेस,
फ्यू टेस्ट मैचेस, ऐसे ही रितेंद्र सोडी भी खेला, अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गया, इसकी बैक फ्रैक्चर हो गई थी जिसके कारण इसका कैरियर शॉर्ट रहा। पर अब एज ए कमेंटेटर, एज ए मैच रेफरी, ब्रिलियंट टीम, जितने भी अभी आप सबसे मिलोगे, ऑल आर अननोन खिलाड़ी, नाउ दे आर डूइंग एवरीबॉडी वेरी गुड एंड थैंक यू वेरी मच। क्योंकि मुंबई में आके, मुंबई है सबको पता है कि वो क्रिकेट का एक समरा सारी यहाँ पे मक्का कहते हैं यहाँ पे तो और मैं जब भी यहाँ वानखेड़े में खेला हूँ 12-14 मैच, दिल्ली ट्रॉफी, तो मेरे को जो अच्छा जो मज़ा मुंबई में आके लगता है, जो खेलने का मज़ा है और जो क्रिकेट की कल्चर या क्रिकेट का जो पैशन है उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो इस बार फिर दीपक जी ने हमें मौका दिया आने का, बहुत बहुत थैंक यू आप सबका। उम्मीद करते हैं कि आज जो ये प्रोग्राम होने जा रहा है इनका तो थैंक यू है, ऊपर भगवान का भी बहुत बहुत थैंक यू, और इन बच्चों का बहुत बेस्ट ऑफ लक कि दे विल डू वेल इन देयर कैरियर। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि आई हैव नॉट ए फादर ऑफ वन सन, आई एम ए फादर ऑफ 15 सन्स, मेरे ये सारे बच्चे। थैंक यू वेरी मच, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स आप लोग आए, थैंक यू। शुरुआत तो करो, इसी पीछे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल दीपक भाई का बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये मूवमेंट आज सच में ऐसा लग रहा है कि हम 30 साल वापस चले गए हैं। तब भी हम जब जीते थे ब्लेज़र में थे, ऐसे तैयार होके हम वाया दुबई वापस इंडिया पहुंचे, और जो वेलकम वहाँ पे हुआ जब पूरा इंडिया का मीडिया दिल्ली एयरपोर्ट पे था, आई थिंक दैट वाज मैसिव, दैट वाज लाइक ड्रीम कम ट्रू। और जैसे अभी हमने सफ़र की बात की, वहाँ पे वर्ल्ड कप हम जीतना चाहते थे, लेकिन कोई हमें वहाँ पे फेवरेट नहीं वहाँ पे आंक रहा था। लेकिन जैसे जैसे सफ़र चलता रहा, जैसे जैसे परफॉर्मेंस हुई, सब लड़कों ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। अगर हम भुवन की बात करें, भुवन हरबोला जिन्होंने हमें साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक फंसा हुआ मैच जिताया सेमीफाइनल में। ईशान गंडा ने इंग्लैंड के अगेंस्ट छक्का लगाया जहाँ पे हम हार के दरवाजे पे खड़े थे, और मोहम्मद कैफ जो उस टूर्नामेंट में आउट ही नहीं हुए, इतनी ज़बरदस्त बल्लेबाजी की। आई थिंक इट वॉज कंबाइंड टीम एफर्ट। विवेक महाजन ने जो बल्लेबाजी की फाइनल में, रवनीत रिक्की की जो उनका जो योगदान था, गुजारिंदर चहल ने जो बॉलिंग की, राकेश रमन झा, तो आई थिंक इट वॉज कंबाइंड टीम एफर्ट। और जो पाकिस्तान के मैच की हम बात कर रहे हैं, 230 रन हमने करने थे, बड़ा प्रेशर था। उनकी टीम में कामरान अकमल थे, शोएब मलिक, बाजिद खान, हसन राजा, इमरान कादिर, अब्दुल कादिर के बेटे, तो ज़बरदस्त टीम थी उनकी। तो हम फेवरेट नहीं थे वहाँ पे, लेकिन जैसे शाम हुई, हमें 7 रन जीतने को चाहिए थे, 6 हमारे आउट हो गए थे। तो एक साइड पाकिस्तानी क्राउड था, अराउंड 15-20 हज़ार लोग, 15-20 हज़ार लोग भारत के एक साइड पे, वहाँ से गाली चल रही थी, वहाँ से गाली, और हम बीच में थे। और जब 7 रन रह गए तो क्राउड जो पाकिस्तान का था एकदम खड़ा हो गया और सारे अंदर आ गए। अंदर आके मैच रुक गया। उन्होंने डंडे डुंडे जो पकड़े हुए थे, तो मेरे साथ महाजन बैटिंग कर रहे थे, तो जब मैंने देखा कि 3-4 लोग मेरे पास ही आ रहे हैं भागते हुए, तो मैंने महाजन को बोला भाग। तो जब वहाँ हम बाहर आए, मैच रुक गया, और आधे घंटे में लंदन की तमाम पुलिस लॉर्ड्स में आ गई, क्योंकि उनको लगा कि बच्चों का मैच है। लेकिन ये दर्शाता है कि इंडिया पाकिस्तान कहीं भी खेलें, ये राइवलरी बहुत ज़बरदस्त है। और उसके बाद 7 रन जीतने को चाहिए थे, मैं बाहर था, तो दीपक भाई आए, तलवार सर आए कि अभी मैच ख़त्म नहीं हुआ है ना, विकेट गिरना नहीं चाहिए, नहीं तो प्रेशर हमारे पे आ जाएगा। लेकिन खुदा उस दिन, वाहिगुरु सच्चे पातशाह, सब हमारे साथ थे और हम वर्ल्ड कप जीते। और वो लम्हे आज वी आर इन मुंबई टू रीलिव इट, एंड दिस इज़ समथिंग नॉस्टैल्जिक। सोचा नहीं था ऐसा होगा, लेकिन तमाम टीम, अब टीम बस में हम आए हैं। ऐसा लगा कि 30 साल पहले जैसे हम इंग्लैंड के खिलाफ खेलने जाते थे, पाकिस्तान के खिलाफ खेलने जाते थे। आई थिंक इट हैज़ बीन मैग्निफिसेंट। और स्पेशली मैं मोहम्मद कैफ के बारे में कहना चाहूँगा। उसके बाद सबको मौके मिले, कोई डोमेस्टिक बड़ा अच्छा खेला, इंडिया ए खेला, मुझे मौका मिला भारत के लिए खेलने का। लेकिन जिस तरह कैफ ने इतने साल भारत की नुमाइंदगी की, जॉन्टी रोड्स की हम बात करते हैं, मुझे लगता है जॉन्टी रोड से बेहतर मोहम्मद कैफ हैं, और आज भी ये फील्डिंग वैसी कर सकते हैं जो जॉन्टी रोड्स करते हैं। तो इनकी फिटनेस आई थिंक हैज़ टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट वुडेंट हैव बीन पॉसिबल विदाउट तलवार सर, बिकॉज जो हमने कैंप फरीदाबाद में लगाए 3 महीने, कोई स्पॉन्सर ज़्यादा नहीं था, एक पंखा होता था, एक क्लासरूम था स्कूल का, 70 बच्चे वहाँ सोते थे, और पंखे के हम आसपास आते थे कि हवा आ जाए हमें। लेकिन उसके बाद जो 20 अगस्त
1996 जो हवा लगी जीत की, वो तोहफा थी। तो इसीलिए कहा जाता है यूं ही बैठे बैठे जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो इस टीम ने कोशिश की और इसका योगदान तमाम खिलाड़ियों को जाता है, तमाम मैनेजमेंट को जाता है। और वंस अगेन तहे दिल से दीपक भाई को शुक्रिया, थैंक यू। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। फाइनल के अंदर ये नॉट आउट है, कितने करी थे? 83 नॉट आउट। तो एक एंड पे ये पकड़ा रहा था, सारी ताड़ियाँ इसके लिए बजा दी आप। क्या कि मोहम्मद कैफ कैसे बने, मैं अपनी अगर मैं कहानी बताऊं जीवन की, उसका जो बुनियाद था वो था अंडर 15 वर्ल्ड कप जो हम जीते। कि मैं आता हूँ यूपी से, और यूपी में क्या होता है उस टाइम पे, मतलब मैं बात कर रहा हूँ 96 की, आज से 29-30 साल पहले की बात है। तो यूपी में क्या होता है कि एक प्लेयर तो बहुत होते हैं, बहुत भीड़ है, बहुत बड़ी आबादी वाला वो स्टेट है। तो हम जैसे बहुत से मोहम्मद कैफ वहाँ घूमते रहते हैं। अगर वो प्लेटफॉर्म मुझे ना मिलता और मैं वो टूर्नामेंट खेलने नहीं जाता और वहाँ हम ना जीतते, तो और जो मीडिया में उसका जो नाम आया, पाकिस्तान को हमने लॉर्ड्स पे हराया, वो सब अगर वारदात या कहानियाँ ना आती तो फिर मुझे स्टेट टीम में वो मेरा नंबर नहीं लगता। ये खेलने वाले बहुत होते हैं, पर किस्मत से अगर आपको एक लाइन मिल जाए, डायरेक्शन मिल जाए, उसके लिए आप इतनी मेहनत तो बहुत करते हैं, पर वो लाइन तलाशते हुए कभी कभी आपका जीवन निकल जाता, मौका नहीं मिलता। और मैं अपने स्टेट की बात कर रहा हूँ, मुंबई का मुझे नहीं पता क्या सिस्टम है, सिस्टम तो अच्छा ही है, पर मैं अपने स्टेट की बोलो जो थोड़ा सा वो सिस्टम के मामले में पीछे। तो जब हम जीत के आए तो वहाँ मुझे मौका मिला, फिर मैं अंडर 16 खेला, फिर वहाँ अच्छा खेला, रन बनाया, 19 खेला, अंडर 19 वर्ल्ड कप कप्तानी करी, वहाँ जीते, रणजी खेला, ड्रीम ट्रॉफी खेली, फिर इंडिया के लिए खेला। और उसके बाद आपने मेरा नाम सुनना स्टार्ट किया उसके बाद से, कि पर वो जो जर्नी है शुरुआत की यहीं से हुई थी। सरकार तरवा साहब बैठे हैं, मैं उस टीम का हिस्सा नहीं था। पहले बार जब 40 का जो कैंप लगा, मैं सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ था, मैं घर चला गया। इन्होंने निगाह लगा कर रखी थी कि एक लड़का था जो बैटिंग तो अच्छी कर रहा था, क्योंकि पर इतनी भीड़ थी वहाँ पे, मैं सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इन्होंने फ़ोन कराया कि बेटा तुम जा रहे हो, पर मेहनत करते रहना, मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारा अगले कैंप में नाम आए। मैं घर गया, फ़ोन आया घर पे, उस टाइम तो लैंडलाइन थी, मोबाइल का ज़माना था नहीं, मैं 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने फ़ोन किया कि अगले कैंप में आपको आना है। मैं गया, वहाँ 10-12 मैचेस हुए, मैचेस खेले, मैंने स्कोर किया, फिर टीम में नाम आ गया। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि उस्ताद की जो रोल होता है आपके जीवन में, क्योंकि मेरे पास तो बहुत से मैंने कोचेस देखे, मैंने ग्रेग चैपल भी देखा, मैंने जॉन राइट देखा, मैंने सौरभ गांगुली कप्तान देखा, सचिन के साथ खेला बहुत साल, राहुल द्रविड़ कैप्टन थे। तो कोचेस तो बहुत मिले मुझे लाइफ में, पर जब मोहम्मद कैफ को कोई जानता नहीं था, उस टाइम ये शख्स मेरे साथ खड़ा हुआ था, सरकार तरवार। इनका क्या था कि ये बड़े ईमानदार, ऑनेस्ट, कि यार अगर मैं कोच बनाऊँ तो टीम ऐसी बनाऊँ कि जाके वहाँ पे अच्छा खेलें। सिफारिशी बहुत सारे थे, वो स्कूल फेडरेशन का टूर्नामेंट था, बहुत सारे जो नहीं अच्छा खेलते थे उनका भी बहुत वो ट्रायल पे आया, उनके बहुत सारे जानने वाले थे। पर इस बंदे ने ना, वो पंडित साहब बैठे हैं, दीपक पंडित साहब, वो भी सिलेक्टर थे, इन दोनों ने ये डिसाइड किया कि ये टीम में सिर्फ अच्छे प्लेयर, जो डिज़र्विंग प्लेयर हैं, वो प्लेयर ही हम सेलेक्ट करेंगे। जो बुनियाद थी वो सच्चाई की पे बनी थी, ईमानदारी का बेस था। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो कोचेस का जो रोल होता है उस्ताद का, मैं खुल के नाम ले रहा हूँ, क्योंकि इनके अगर सरकार दरबार साहब ना होते तो मैं यहाँ पे नहीं बैठा होता, क्योंकि मौका दिलाया। फिर वो तो बात की बात है, मैं अच्छा खेला, वहाँ पे वाइस कैप्टन भी बन गया, मैंने स्कोर भी किया, हम वर्ल्ड कप जीत के आ गए, इंडिया पाकिस्तान का नाम लिया, यहाँ पे लॉर्ड्स जैसे मक्का ऑफ क्रिकेट बोलते हैं लॉर्ड्स को, वहाँ खेलने का मौका मिला। एक तरफ पाकिस्तान का क्राउड है, उनका फ्लैग, हमारी तरफ हिंदुस्तान का क्राउड है, वहाँ तिरंगा लहरा रहा है। मतलब 15 साल की उम्र में तजुर्बा ऐसा हो गया कि यार अच्छा ये होता है प्रेशर, कि अंडर 15 जो अंडर एज क्रिकेट होती है, वहाँ पे आपको खेलने का मौका मिला, ऐसा मौका कि सारी दुनिया की निगाह आपके ऊपर है। अच्छा वो जीत गए, फिर मैं पाकिस्तान टूर पे भी गया 2004 में, 2006 में भी गया, वहाँ जीत के आए, बहुत सारे मैचेस खेले। तो वो ऐसा प्लेटफॉर्म था कि जब मैं दोबारा पाकिस्तान सर के साथ खेला
क्योंकि मुझे ट्रेनिंग मिल गई कि भाई पाकिस्तान के साथ जो दबाव होता है, बाहरी दबाव जो बज़ होता है, उसको कैसे हैंडल करते हैं। तो मुझे जो बुनियाद मिली वो अंडर 15 वर्ल्ड कप था सर। वो अगर पाकिस्तान का जो मैच हम जीते, इतना प्रेशर वाला मैच था, अगर वहाँ से हमें हैबिट ना मिलती, खेलने की आदत नहीं पड़ती, प्रेशर वाला मैच, तो मैं यहाँ पे ना बैठा होता। तो मेरा मानना है कि उसके बाद तो ऑफकोर्स मैं बहुत खेला, सोडी इंडिया के लिए खेले। तलवार साहब भी अपना बिज़ी हैं, उनके साथ बहुत सारे काम में करते हैं लाइफ में। बहुत सारे जो हमारे टीम के जो प्लेयर यहाँ पे आए हुए हैं, कोई रणजी खेला, कोई नॉर्मल जॉब कर रहा है, कोई स्ट्रगल भी कर रहा है। ऐसा नहीं कि सब लोग को लाइफ में बराबर मिलता है, ऐसा नहीं होता। कोई स्ट्रगल भी कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि यहाँ आने का जो पूरा एक प्लान था कि भाई इसको थोड़ा सा अपनी कहानी बताई जाए, और मीडिया आई हुई है जो मैं चीज़ें बयां कर रहा हूँ कि कहानी को आप समझें, आप भी जिए कि हम किस तरीके से वहाँ पहुँचे और कैसे वहाँ से जीवन बदला। प्लेयर हम जैसे प्लेयर निकले, जीवन बदला, अपॉर्चुनिटी मिली। तो वो जो 2 शख्स यहाँ बैठे हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान था। सही सिलेक्शन, सारे मैच जीते, 6 के 6 मैच जीते, एक ही मैच वहाँ हारे नहीं हम लोग। तो और इसीलिए यहाँ बैठे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब मीडिया वालों का, क्योंकि आप लोग का फ़र्ज़ बनता है कि ये कहानी आप बताएं, लोगों तक ये कहानी जानी चाहिए। और मैं जो कुछ भी बन पाया, लोग जॉन्टी रोड्स का नाम ले रहे हैं, कोई नंबर 7 पे। मैं दोबारा वहाँ लॉर्ड्स में खेला, जो 325 की बात करते हो, वो लॉर्ड्स में दोबारा खेलने का मौका मिला। मैंने वहाँ मैच जिताया भी, मेरा मैच बना, क्योंकि वहाँ मैं पहले खेल चुका हूँ, गया हूँ, तो फ़र्क पड़ता है वो जो ग्राउंड में पहले अगर आप खेले हैं तो ओवरऑल थैंक यू सो मच। आप लोग ने टाइम निकाला, यहाँ हमें बुलाया और मुझे बड़ा मज़ा आया। मैं तो जो हमारे टीममेट्स हैं यहाँ पे मिल के बस में बैठे, साथ में आए, पुरानी यादें ताज़ा करी। उस मौका कहाँ मिलता है, लाइफ में लोग बिज़ी हैं। ऐसा नहीं कि आप मुंबई बैठे हो, सर हरियाणा रहते हैं, मैं गुड़गांव रहता हूँ, यूपी रहता हूँ, ये पंजाब से आ रहा है। तो आपने ऐसा मंच दिया, मौका दिया कि साथ में मिले। दीपक सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपने काम किया कि आपने दोबारा से हमें जो रिलीफ की बात करते हैं मोमेंट जीने का मौका दिया। सो थैंक यू सो मच और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू और इन्जॉय द इवेंट। क्या गोल्डन मेमोरीज हैं जो आप साझा करना लॉर्ड्स लॉर्ड्स की जो टीम ने वहाँ परफॉर्म करा, एक तो बहुत प्रेशर था। आपको जान के खुशी भी होगी, हैरानगी होगी कि आदिलीय शरद पवार जी वहाँ पे आए हुए थे और वो हमारे ड्रेसिंग रूम में किसी तरह आए। जो हमारे मैनेजर थे जो इंडियन टीम के, वो यहीं के IAS अफसर थे महाराष्ट्र के, शायद मिस्टर देश पांडे। तो वो भी वहाँ पे ड्रेसिंग रूम में बैठे रहे 6 घंटे फिंगर क्रॉस करके। मतलब एक ऐसा एक पैशन था। और इन यंग बच्चों ने जो परफॉर्मेंस दी है वहाँ पे, चेतन शर्मा भी काफ़ी, पाकिस्तान की तो मेन टीम टूर कर रही थी, वो सारे वहीं थे, जावेद भी सारे थे। तो दे हैव ए बिग स्पोर्ट, सारे इंडिया की भी स्पोर्ट बहुत थी। बस असली खेल तो ग्राउंड के अंदर था, मैच के अंदर था। जो इन्होंने रतिंदर सोडी ने बैटिंग करी और बाकी ने सपोर्ट करा, वो अमेजिंग। ही वॉज स्टैंडिंग लाइक ए रॉक, यू नो। इतने प्रेशर के अंदर आपको परफॉर्म करना इज़ नॉट ईजी। बड़े बड़े लोग मैंने देखा जीवन के अंदर क्रैक कर जाते हैं। तो ये एक वहाँ की एक ब्यूटी थी उस सारी टीम की कि मैंने इनको एक रात पहले कहा था कि भाई लोग तो काले पानी के अंदर देश के लिए चले जाते हैं, अगर आप में से कोई वहाँ गया है? बच्चों ने कहा कि हम नहीं गए। तो मैंने कहा देखो आप लाइव मैच था स्काई टीवी पे, मैंने कहा इस उम्र के अंदर आपको देश खेलने का मौका मिल रहा है, ये बड़ा भारी एक अचीवमेंट होती है हर देश को रिप्रेजेंट करना। तो आज इसको सपने को पूरा कर दो। मैंने जैसे पहले बोला यू क्लाइंब द एवरेस्ट, तो मैं खड़ा हो गया। तो ये सारे लोग यू के अंदर बैठे तो कुर्सी के अंदर, तो मैंने इनसे सबसे जाके हाथ मिलाया। तो जब मैं आके बैठा, मैंने देश पांडे साहब को कहा, मैंने कहा देश पांडे जी हम वर्ल्ड कप जीत गए। वो कहते वो कैसे? मैंने कहा जब मैंने इनसे हाथ मिलाया, इनके हाथ सख्त थे और दे वर सीइंग आइज टू आइज कि वी विल गोइंग टू डू इट सर, एंड दे डिड इट। ये एक जो एक अचीवमेंट थी, मैंने बोला कि ऐसी अचीवमेंट थी जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, उसको महसूस करना पड़ता है।
तो हमने महसूस करा और सारे ये लोग रोए, वाह, दे वीप लाइक ए चाइल्ड। सेलिब्रेशन पे तो दे नॉट। प्राइम मिनिस्टर होस्टिंग ब्रेकफास्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उन्होंने हमें होस्ट करा, और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे मिस्टर वर्मा। अबू धाबी में 3 दिन रहे, वहाँ पे इंडियन, वो बाद में सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती है। सक्सेस है सो मेनी This सेलिब्रेशन। was एक incident, that's why there's a one incident you will remember. हम लोग के विकेट पहले गिर गए थे फाइनल्स में, एज इट वाज लॉन्ग चेज। आई बीइंग ए सत्य साई बाबा डिवोटी, तो मेरे पास विभूति थी, तो मैंने रतिंदर बताया, तो रतिंदर को मैंने बोला भाई एक विभूति ले खा, और देखो सबको मैंने जो जाने वाले थे सबको, एंड देन यू विल नॉट बिलीव, आई थिंक वी हार्डली लॉस्ट 1 विकेट आफ्टर हार्डली 1 विकेट लॉस एंड वी बीट पाकिस्तान। तो बिकॉज सत्य साई बाबा का जो एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, आई थिंक यू मस्ट बी अवेयर। सो दिस वर्ल्ड कप लाने में भी सत्य साई बाबा का काफ़ी हाथ है। दैट्स व्हाई आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दिस। सर, और एक चीज़ है कि कितना बड़ा चैलेंज था कि इतनी परफेक्ट टीम साथ में लानी, जैसे कैब सर ने कहा कि मतलब हो सकता था वो अननोटिस चला जाए उनका जो परफॉर्मेंस है, अगर उस बारे में कुछ शेयर करें कि कितना बड़ा चैलेंज था पूरी। It was my dream, मेरा थॉट था, and I wanted to just bring it to the, and ultimately I can tell you, Satya Sai Baba, it is he, we are, doer is he, Satya Sai Baba, not me or anybody. You know, it's Almighty. It's all his blessing. I am just the doer is he. So I tried my best, and they are here for the world, and all the best to them. Two questions, two more questions. मोहम्मद सर आपसे सवाल है। Yeah, please. सर आप मोहम्मद कैप से दूसरे बने नहीं, एक ही मोहम्मद कैप थे, तो आप ऐसे कोई क्यों नहीं बनाया? अभी क्यों रिसर्च क्या है? It's the last. ये नहीं, अच्छे फील्डर्स आए, ऐसी बात नहीं। विराट कोहली बहुत शानदार फील्डर है, जडेजा बहुत उमदा फील्डर है, पर आई थिंक हमारे ज़माने में क्या था, थोड़ा हमें ट्रेनिंग करने का टाइम मिलता था, जैसे कंडीशन कैंप जो होती है या ऑफ सीजन जो होता है। अभी आजकल के ज़माने में शायद आपको ऐसे कोई बहुत बेटर फील्डर्स हैं, पर शायद बहुत तगड़ा, मतलब ऐसे कोई जडेजा के ऐसे आसपास शायद ना मिले। उसका रीज़न मेरा ऐसा मानना है कि इतने मैचेस खेलते हैं, कोई कभी ओडीआई, कभी आईपीएल आ गया, कभी कोई दिलीप ट्रॉफी हो रही है। अभी आप देखो ना, जैसी बारिश ख़त्म होता है बंदा ना साल भर बिजी होता है। फील्डर बनने के लिए आई थिंक मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम, जैसे अभी रोहित शर्मा का देख लो आप, उनका एक नया लुक आया, वो क्यों कर पाए? क्योंकि ब्रेक लिया है। अगर आप लगातार मैच खेलते रहोगे, वो जो रूटीन होता है, होटल में सोना, सुबह भागना, भाग दौड़ की लाइफ में आप फिटनेस पे काम नहीं कर पाते। फिटनेस से काम करने के लिए तो ब्रेक चाहिए। जो अभी रोहित शर्मा का मैं देख रहा हूँ कि वो काफ़ी उन्होंने वेट लूज़ किया, बड़ा एक शार्प लुक आ रहा है, तो वो क्योंकि अभी ओडीआई आने वाला, उससे तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि अच्छा फील्डर बनने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम अलग से, जो फिटनेस कैंप की बात करते हैं, वो सब इंडियन टीम में आजकल बहुत कम लगता है। आपने कब सुना है इंडियन टीम में कि 40 दिन का कंडीशनिंग कैंप है? कब सुना, बताओ ना। तो उसके वजह से क्या होता है ना, अगर आप तक फिटनेस पे काम नहीं करोगे, आप तेज़ भाग नहीं पाओगे, तो आप अच्छी फील्डर बन ही नहीं पाओगे। तो मेरा मानना है कि जो बेस होता है अच्छा फील्डर बनने का, वो होता है फिटनेस, वो आपकी एजिलिटी, वो आपका स्पीड, टांगों में जान, वो शायद होता है मेरे हिसाब से। आपको ऑफ टाइम मिलता है तब आपको काम करने का। उसको साइन ऑफ टेक अ ग्रुप फोटो। नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये हटा के यहीं करेंगे। टेक अ मिनट, ये तुरंत हट जाएगा। आनंद आ जाओ, कौन ग्रुप फोटो। हाँ प्लीज साइड। मोबाइल मार के जरा। यहाँ पर सामने आपका पर्स बहुत इंटरेस्टिंग है। बिग बॉस की आंख है, बिग बॉस की याद दिला रही है। अरे भाई, दिस इज ईविल आई, एंड एक्चुअली यस, बिग बॉस की आंख है यहाँ पर, उसके बारे में हम करेंगे बात। 1996 में
इंग्लैंड में, स्पेशली पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत बड़ी विक्ट्री थी जूनियर क्रिकेट टीम के लिए। एंड मोहम्मद कैफ जी यहाँ पर उपस्थित हैं जिन्होंने उस समय लीड किया टीम को। आई एम फीलिंग रियली ग्लैड एंड लकी टू गेट अ चांस टू अटेंड दिस अमेजिंग इवेंट। और क्रिकेट बचपन से ही गली क्रिकेट से शुरू होता है हमारे लिए, बच्चों के लिए। और मेरी तो मेमोरी ये है कि मेरे ब्रदर ने मुझे बहुत मार मार के क्रिकेट खिलवाया है। मैंने बॉलिंग ज़्यादा की है क्योंकि बैटिंग करने का मौका ज़्यादा मुझे वो देता नहीं था। बट आई एम सो वेरी हैप्पी टू बी द पार्ट ऑफ दिस इवेंट टुडे। मुझे बहुत अच्छा लगा, समथिंग डिफरेंट फॉर मी। हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के लिए कुछ कहना चाहेंगे जो अभी एशिया कप? बहुत शुभकामनाएं। इट इज़ नॉट ईजी, इट्स टोटली ऑपोजिट देन द ग्लैमर वर्ल्ड। फिटनेस दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है और अपनी फिटनेस को मेंटेन रखना, जज्बा ऐसा रखना कि पूरे देश की जिम्मेदारी, जीत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर चलना, इट्स नॉट ईजी। और हमेशा ही बहुत सारी शुभकामनाएं। हार जीत लगी रहती है लेकिन जज्बा बना रहना चाहिए। थैंक यू शिखा जी, थैंक यू। मैं एक विजुअल कर लेता हूँ। शमी सर या शमी सर सेंटर सर, सामने सामने। थैंक यू सर। सर इसे इस तरह से हमने गाने किए। सो ऑब्वियसली बिकॉज हमारी टीम वहाँ पे है और यू नो टीम के हैप्पीनेस के लिए जो उन्होंने खुशी हमें दी और जो सम्मान और गर्व हिंदुस्तान को दिया, उसके लिए छोटी सी प्लेट। थैंक यू। क्या बोलेंगे? खुशी की बात है और टीम को इतने सालों के बाद, और जो ऑर्गेनाइज़र हैं दीपक पंडित साहब, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया और मेरी बस नेक ख्वाहिशात हैं। इसलिए बहुत एक लाइन कोई गाने की गुनगुनाई? नहीं वो नहीं यार, अभी क्रिकेट खेलेंगे। मैं क्रिकेटर था एक ज़माने में, ना पीछे हटो बताता हूँ। जी जी। खड़ा आशीष जी आहे इथे, दिनेश भाई मागे या भाऊ। सर सेंटर। दिनेश भाई पीछे आ जाओ ना। आशीष सर इधर आ रहा है। अजी सर चले। सोलो सर, एक सोलो फोटो। ये चेक्स वाली शर्ट मैम यहाँ पे। हेलो, सामने देखिए, सेंटर में देखिए।